Welcome back once again to GPET Mentor, and in today's video we will talk about IIT BHU AMFARM Entrance Exam 2024. In this video we will discuss about the type of questions, the exam pattern and important topics for IIT BHU AMFARM Entrance Exam with respect to the last year question paper. So the basic thing that you must know is around 3 p.m., that is from 3 to 5 p.m. This is what is the time of AMFARM entrance exam. You have 120 minutes and you have 100 questions. So these 100 questions. One more thing, the sitting plan will be provided you on the registered email ID. That will be you will be provided that around 1 p.m. like after post the document verification of every student who will be visiting for this particular exam. So ideally we will divide this into 5 sections. So the question paper will be in 5 sections or maybe in 4 sections, either 4 or 5 sections. It depends upon if they have kept reasoning as a section or not. So I would like to divide these 5 sections: general awareness and reasoning. Another one is SUTIX. Then we have chemistry, then we have cognosy, and then we have ecology. So what could be an ideal situation in these kind of questions? So if they would have divided it into 20 and 20, so this would have been an ideal situation. I hope these are 20, 40, 60, 80, 100. Oh, sorry. So this would have been an ideal situation for these kind of paper, but as far as I remember from the last year, the one that I gave, my friends gave, so there were 13 questions. There were 13 questions from general awareness and reasoning. From SUTIX there were exact 25 questions. From chemistry there were around 29 questions. From cognosy there was around 8 to 9 questions, if I remember correctly, 8 to 9 questions from cognosy, and around 24 to 25 questions were from ecology. This equals to 100. So this was the paper pattern last year. If you ask me, sir, how do you know this exact number? So last year when I was giving the exam, so in 1 hour 15 minutes I completed my paper, and after that I have more 45 minutes. So what I did that I calculated these numbers. So there were 13 of the reasoning and general awareness question, 25 was from SUTIX, 29 from chemistry, and cognosy 8 to 9, and ecology 24 to 25. So you can believe in this because I myself did this part, so it's not an assumed number, this is a correct number. So now let's come to another part, that what were asked in this particular sections. So these are the 5 sections. If they're keeping general awareness and reasoning, you can still find 10 questions this year. So this was for 2023. So if they are keeping general awareness and reasoning once again, so you can find 10 to 12 questions from general awareness and reasoning. Same goes for SUTIX. You will find 25 questions, a minimum of 25 questions here also. Chemistries have high weightage, but we can assume that you can get it from 25 to 28 questions in chemistry, and then from cognosy you can get around 10 to 12 questions, I can believe, because they can increase this particular number. And from ecology you will again get around 25 questions. This, if you add up, it might go above 100 or it might be less than 100. This is an assumed number, this is not a correct number. Obviously when you will give the exam, you will know that what is the correct number. So we can assume it's something like this. But if you remove this particular part, if general awareness and reasoning is being removed from all the 5 sections, then you can assume that you will have higher weightage in chemistry and SUTIX and ecology. You will have a lesser number of questions from cognosy. Like you can say you can have around 15 questions from cognosy, and the rest of the 10 questions, like if we divide it into 4 parts, 25, 25, 25, 25, but if this is having 15 questions, you can divide other 10 questions in these 3 particular sections. Okay, so if you have any doubt until now from the video, you can make sure that you comment. I will make sure that I reply to your particular query, right?
So this is the mind map from the last year and a assumed number that we can take for 2024 question. So we up until now in this video we have talked about the exam pattern. This is the exam pattern. This is the last year questions that you have in the exam pattern. Now we will talk about the important topics and the topics which were covered in last year exam. So let us take cognosy first. In cognosy there were 8 questions. Among these 8 questions there were 2 general questions. 2 general questions means they were more relevant to cognosy and general knowledge related thing, not pure cognosy thing. Like they were not about alkaloid, glycolides, volatile oil, tannins, resins, इनके बारे में वो नहीं था. It was around somewhere in between news and cognosy. I hope you can understand this. So इसमें एक मुझे जो क्वेश्चन याद है काफ़ी अच्छा, इसमें यूजेनॉल, आई होप स्पेलिंग इज़ करेक्ट, होपफुली इट इज़ रॉन्ग, मेरे को लग रहा है रॉन्ग है. यूजेनॉल का स्ट्रक्चर के बारे में पूछा हुआ था. बी अवेयर, IIT BHU के एंट्रेंस एग्ज़ाम में एक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन कोग्नोसी में ज़रूर आता है. इसके अलावा टेस्ट, आई बिलीव टेस्ट जो है उसके बारे में भी पूछा था. जो हमारे अल्कालाइड्स ग्लाइकोसाइड्स के लिए जो टेस्ट होते हैं, आइडेंटिफिकेशंस टेस्ट, वो कोग्नोसी में ज़रूर पूछा था. तो ये 2 चीज़ें मुझे याद हैं अभी तक ये 8 to 9 क्वेश्चंस के अंदर. ओके, अनदर थिंग यू कैन टॉक अबाउट केमिस्ट्री. केमिस्ट्री इज़ नॉट वेरी वास्ट, इट्स वेरी सिंपल. देयर वर क्वेश्चंस फ्रॉम आइसोमेरिज्म, SN1 एंड SN2, E1 एंड E2. नेम रिएक्शन थे. नेम रिएक्शन मैं आपको नेम रिएक्शन बहुत स्पेसिफिकली बता सकता हूँ कि बिकॉज लास्ट ईयर, यस आई रिमेंबर द टेस्ट, शिनोडा टेस्ट के बारे में पूछा था लास्ट ईयर इन कोग्नोसी. और नेम रिएक्शन की यदि हम बात करें तो नेम रिएक्शन में एक 2-3 क्वेश्चन थे जो कि नेम रिएक्शंस के आसपास थे. अमॉन्ग देम वन वाज सुजुकी रिएक्शन, इसके बारे में पूछा हुआ था. तो सुजुकी रिएक्शन इज़ समथिंग दैट यू रीड इन एमफार्म. सो आई वांट यू गाइस टू बिलीव कि केमिस्ट्री थोड़ी सी तो अच्छी आने वाली है, समवेयर हार्ड. यू कैन हैव सम क्वेश्चंस फ्रॉम एमफार्म, बट उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है. आप में से कोई भी एमफार्म नहीं पढ़ा होगा. यस एरोमेटिसिटी, इसके बारे में भी सवाल पूछे गए थे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में. सो दिस वाज अराउंड केमिस्ट्री. और भी क्वेश्चंस होंगे. एनालिटिकल केमिस्ट्री, यस, यूवी IR ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है. मैं जो हमारा एनालिटिकल केमिस्ट्री है, मतलब फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, मैं उसको इसी में एज्यूम करके रखता हूँ. UV प्लस IR ये दोनों ही प्लस NMR. यहाँ से भी क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर पाए गए थे. तो एक बार के लिए इसको आप दोबारा रिवाइज़ कर लें. देर आर अराउंड 3 to 4 days. इन दोनों को ज़रूर आप रिवाइज़ कर लें. ओके, नाउ वी टॉक अबाउट रीजनिंग की बात कर लेते थे. देखिए, रीजनिंग तो ऐसी चीज़ है कि यदि आपको आता होगा तो आता होगा, और यदि नहीं आता होगा तो नहीं आता होगा. सो फिर भी मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ. लास्ट ईयर एक ड्रंकन मैन के ऊपर क्वेश्चन आया था. क्वेश्चन ये था कि एक ड्रंकन मैन 5 सेकेंड में 5 मीटर आगे चलता है और फिर 3 सेकेंड में 3 मीटर पीछे आ जाता है, तो कितने सेकेंड में वो 11 मीटर में जो आगे गड्ढा है उसमें वो गिर जाएगा. तो ये एक ट्रिक क्वेश्चन था, ड्रंकन मैन वाला. इसका सॉल्यूशन आप लोग ट्राई कर लीजिएगा. देयर आर क्वेश्चन फ्रॉम न्यूमेरिकल सीरीज़. देखो, मेरे को जहाँ तक याद है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, न्यूमेरिकल सीरीज़ थी ये 2, 2, 2, 2, 6, 8, 24, 30, 54 और ये नंबर पूछा था. आई होप आई एम करेक्ट, ये रॉन्ग भी हो सकता है, बट इसके जो ऑप्शन है वो मेरे को बहुत ही अच्छी तरीके से याद है. इसके ऑप्शंस थे 120, 100, 110 एंड 88. ये ऑप्शन थे इस पर्टिकुलर सीरीज़ के. इसको ज़रूर आप एक बार देख लें. तो ये न्यूमेरिकल सीरीज़ थी और इसमें इफ़ A, B, C, D कैन बी रिटन एज Z, Y, V, U, तो हमें
JKLM को क्या लिख सकते हैं? ऐसे भी सवाल आपको जनरल एबिलिटी एंड जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग में आपको पाए जाएंगे। देखिए कुछ जो जनरल अवेयरनेस के सवाल हैं वो मुझे याद नहीं है, ये सब तो रीजनिंग वगैरह के ही सवाल हो गए। और चलिए ठीक है, ये तो इफ़ यू वांट टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस यू कैन। तो मैं इसको इरेज करके, क्योंकि हम सुटिक्स और कोलॉजी के बारे में अभी डिस्कस करने वाले हैं। हमारी तरफ से ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब हमारे पास बचा है सुटिक्स और कोलॉजी। देखिए सुटिक्स में जो इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है, लास्ट ईयर बायोफार्म के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा थे। बायोफार्म दिस इंक्लूड फार्माकोकाइनेटिक्स और इसके अलावा जो आईपी है, हमारा आईपी जो इंडस्ट्रियल फार्मेसी है, दैट मीन्स मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, टैबलेट, कैप्सूल, पेरेंट्रल, ऑप्थेल्मिक, एरोसोल, ये सब भी जो है यहाँ से इसके मेजर सवाल बने हुए थे। लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस अगर मैं बताऊँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट बायोएबिलिटी, आईवी दे रखा था, इंट्रामस्कुलर दे रखा था, ओरल दे रखा था और सबलिंगुअल दे रखा था। तो ऐसे क्वेश्चंस थे। क्वेश्चंस आपको सुटिक्स के आसान ही मिलेंगे। सुटिक्स में मैं चाहूँगा कि आप सुटिक्स में प्लीज़ फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस को ज़रूर ऐड कर लें। इसके अलावा आपको बाहर से और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बायोफार्म, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड आईपी एंड फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, दैट विल बी मोर देन इनफ। आप एक आधा क्वेश्चन फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग से भी आपको देखने को मिल सकता है, बट दे विल नॉट बी लाइक इतना भी हार्ड नहीं होगा, लाइक सुपरफिशियल क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं कोलॉजी की। देखो मैं सबसे लास्ट में कोलॉजी में इसी वजह से आया क्योंकि कोलॉजी के मैक्सिमम क्वेश्चंस मेरे को याद नहीं है। यदि मैं फिर भी तुम्हें कुछ क्वेश्चंस बताऊं तो फिर तुम वही कहोगे सर आप तो जनरल बता रहे हो कि ये सारी चीज़ें हैं। देखो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, ड्रग इंटरेक्शन, ये दोनों ही चीज़ें पूछी हुई थी। अगर मेरे को ड्रग के नाम याद होते तो मैं ज़रूर ड्रग के नाम आपको यहाँ पे लिख के दे देता। एंड साइड इफ़ेक्ट, एडवर्स इफ़ेक्ट, ये भी आपको काफ़ी देखने को मिल सकता है। कुछ चीज़ें मैं आपको स्पेशली कहूँगा कि आप कुछ पर्टिकुलर डिजीज़ पे ज़रूर ध्यान दें। अमॉन्ग देम इज़ डायबिटीज़, फिर पार्किंसन। तो ये हमारे लिए दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिजीज़ हैं। इसके अलावा आप अल्जाइमर पे भी आप मतलब इसको स्टडी करके ज़रूर रखें। एंटी कैंसर इनके अलावा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एंटी कैंसर ड्रग, अपन एंटी कैंसर ड्रग के बारे में भी इसको पढ़ लें तो ये आपके लिए आपका लगभग कोलॉजी इसके अंदर कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा और कोई चीज़ें बचती नहीं हैं लगभग डिस्कस करने को। यदि अब भी इस वीडियो को देखने के बाद कोई ऐसा सवाल हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं। आई विल मेक श्योर दैट the questions are answered. I think this is the first video that talks about the paper pattern and the topics that are necessary for IIT BHU M.Pharm entrance exam. So make sure that you share it with your friends. At least जो आपके पास ग्रुप्स हैं, WhatsApp ग्रुप्स वगैरह जो भी आपने बना रखा है उसके अंदर शेयर ज़रूर करें। एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट ऑफ द वीडियो मेक श्योर यू लाइक इन कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेफिक्र हो के आइए, जो भी आपके पास 3-4 दिन है उसमें बढ़िया से रिवीजन कीजिए। ये पर्टिकुलर टॉपिक्स तो एक बार ज़रूर देख लें आप लोग। सी आई एम नॉट सेइंग कि इन्हीं टॉपिक्स से क्वेश्चन आने वाले हैं, बट दीज आर द मेजर टॉपिक्स दैट बियर्स द क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट ईयर पेपर। एक वीडियो में जो दूर से आने वाले स्टूडेंट्स हैं, लाइक द स्टूडेंट्स दैट आर कमिंग फ्रॉम महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और इवन फ्रॉम मोर साउथ और राजस्थान और उड़ीसा, तो I'll make sure make a video for those students also that how to reach the premises.